last lecture, I have discussed to how can we find out particular integral whenever we have exponential function in right hand side. Okay. In this case, now in second case, we are going to find particular integral of the equation d2y dx2 plus p dy dx plus qy equals to rx case 2. Now I am going to discuss case 2 with you. Whenever we have trigonometric function in right hand side, okay, for example, if we have rx equals to sine ax plus b or cos ax plus b, if we have right hand side is sine ax plus b or cos ax plus b, in that case how can we find out this particular integral? At first we use differential operator. Suppose I write this term d of sine ax plus b. D of sine ax plus b is nothing but, as we all know, d is a differential operator and we call it d dx. Okay, therefore d sine ax plus b means we have to differentiate this sine ax plus b one time. If we differentiate it, we get a cos ax plus b. Now if we differentiate it one more time, what will happen? Let us check. D square sine ax plus b. Suppose we differentiate it one more time. What is the meaning of this one? It means we have to differentiate this term with respect to x. We get minus a square sine ax plus b. Similarly, if I differentiate it one more time, it means d3 sine ax plus b. Then I get minus a cube cos ax plus b. And finally, if I differentiate it one more time, d4 sine ax plus b. We have to just differentiate this term one more time. We get d4 sine ax plus b. Once again, we get a4 sine ax plus b. Or we can write it minus a square whole square sine ax plus b. From this discussion, we can conclude that it follows that if we see the conclusion, that if we differentiate sine ax plus b two times, we get the sine function once again. Okay, therefore we can write it phi of d square sine ax plus b, it is equivalent to phi of minus a square sine ax plus b. Sine ax plus b, say it is equation number 1. Now what is the meaning of phi d? Okay, we can write it, let phi d square is rational function of d square. Let phi d square is rational function of d square. If we see this equation number 1, then phi of minus a square is obtained by, we can write, where phi of minus a square is obtained by putting d square equals to minus a square, by putting d square equals to minus a square in phi of d square. Now operating with 1 upon phi d square in equation 1. Now operating with
1 upon phi d square, both side of equation 1, both side of equation 1. We see what will happen if we operate phi d square both side of equation 1, then it will become 1 upon phi of d square, phi of d square sine ax plus b equals to phi, 1 upon phi of d square, phi of minus a square sine ax plus b. Since we have replaced this d square with minus a square, therefore this term will behave as a constant, so that we can put this term outside of this operator sign. It will become, and left hand side will become 1 upon phi d square, left hand side will become sine of ax plus b. Okay, and right hand side will become phi of minus a square 1 upon phi d square sine ax plus b, or we can write 1 upon phi d square, 1 upon phi d square sine ax plus b equals to 1 upon phi minus a square sine of ax plus b. Condition applied, provided phi of minus a square will not equals to 0. ये जो phi of a square आपका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमको यहाँ पर पहला फॉर्मूला मिलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का. अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डी में डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से, और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पता चल जाएगा. सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इफ वी हैव cos ax plus b, then we can generate the formula for cos ax plus b as well. Okay, I'm writing the formula. Similarly, we can write 1 upon phi of d square cos of ax plus b equals to 1 upon phi of minus a square cos of ax plus b. इट मीन्स जब भी हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना होगा, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, तो एफ डी में, चाहे मैं उसको फाई डी कहूँ चाहे एफ डी कहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एफ डी में आप डी स्क्वायर को तो रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से. अब अगर हम ध्यान देने वाली बात है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज करिए आपके पास इक्वेशन होती जिसके अंदर डी स्क्वायर के अलावा और भी टर्म आ रहे आते, इट मीन्स देयर इज अ टर्म ऑफ डी, देयर इज अ कांस्टेंट, तब क्या होगा, उस केसेस में क्या करेंगे, तो उस बात को नोट करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नोट डाउन. वेयर एफ डी कंटेन्स और फाई डी कंटेन्स, वेयर phi d contains, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ ऑड पावर. when phi d contains, okay, sorry, this is when phi d contains terms of odd power, terms of odd power of d, d cube and so on. Okay, even after application of above result, आपने रिजल्ट अप्लाई किया, फिर भी हमारे पास कुछ टर्म बच गए जो ऑड पावर ऑफ टी है, इवन आफ्टर अप्लाइंग और एप्लीकेशन ऑफ above रिजल्ट. तब क्या होगा, देन वी मल्टीप्लाई इट बाई टी. हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा वर्कआउट है डी के पावर इवन रहनी चाहिए. डी के पावर इवन रहेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से
रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, मल्टीप्लाई बाई डी, मल्टीप्लाई it by d so that we get even powers of d, so that we get even powers of d, that is d square, d4 and so on. अब d का क्या मतलब है और 1/d का क्या मतलब है? ओके, d करेगा डिफरेंशियल का काम, लिख देते हैं यहां पर, वेयर d इज ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड 1/d, जो 1/d है वो क्या होगा, अगर d डिफरेंशिएशन का है तो 1/d डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, इज ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन. Okay, so this is the case whenever phi of minus a square is not equals to 0. अब अपने पास दूसरा केस आता है, what will happen if phi of minus a square equals to 0? If this is result 2, in the same case, if phi of minus a square equals to 0, तब क्या होगा? Okay, उस केस में then just note down the formula, then 1 upon phi of d square sine ax plus b equals to x times 1 upon phi dash minus a square sine of ax plus b. यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट को x के साथ और रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, आपको आउटपुट मिल जाएगा. प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी कंडीशन आपको याद रखनी है और ध्यान में रखनी है, प्रोवाइडेड phi dash of minus a square should not equals to 0. अगर phi dash of minus a square भी 0 हो गया तब क्या होगा, let us check. If phi dash of minus a square equals to 0, then तब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को और एक बार x से और मल्टीप्लाई कर देंगे, then 1 upon phi d square sine of ax plus b इक्वल्स टू, वन मोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फाइव डबल डैश माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. ओके, सिमिलरली यही रिजल्ट आपका कॉस के साथ भी चलेगा, सेम रिजल्ट आएगा, कॉस के साथ भी यही वर्कआउट होगा. मैं नोट कर रहा हूँ उस रिजल्ट को आपके पास. कॉस के लिए क्या करेंगे, लेट अस नोट डाउन द रिजल्ट. सिमिलरली वन इफ, नोट कर लेते हैं, if phi of minus a square equals to 0, then 1 upon phi of d square sine ax, सॉरी cos के लिए रिजल्ट कर रहे हैं, cos of ax plus b equals to x से मल्टीप्लीकेशन phi dash, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर cos of ax plus b. कंडीशन अप्लाइड, इफ phi dash minus a square is not equals to 0. क्या होगा, if phi dash minus a square भी 0 हो जाए तब क्या करेंगे, then similarly 1 upon phi d square cos of ax plus b equals to, we multiply one more time with x, okay, and differentiate our denominator one more time, phi double dash minus a square cos of ax plus b. Okay, now we solve some examples based on this particular type. Okay, I'm going to solve some example based on this particular type. See carefully. Example number 1. Okay, solve, your objective is to solve y double dash minus 4y dash minus 5y equals to e to the power 2x plus 3 cos 4x plus 3.
suppose our objective is to find out solution of this differential equation. At first, okay, since we know that any differential equation, if it is non-homogeneous, then solution contain two parts, complementary function plus particular integral. At first we note down this solution of above differential equation will be y equals to cf plus pi, complementary function plus particular integral. And we all know complementary function is nothing but solution of homogeneous part. It means what we do this right hand, we put this right hand side equals to 0. तो पहला काम करते हैं, इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप, राइट इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म. आप सभी को पता होगा व्हाट इज ऑपरेटर फॉर्म. ऑपरेटर फॉर्म है डी एक्स को हम लोग डी से रिप्लेस कर देते हैं, d2 dx2 को हम डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस 3 cos 4x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1. ऑपरेटर फॉर्म हमारे पास आ गई है. तो पहला काम होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, तो हम लोग करेंगे टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुट RHS equals to 0. तो इक्वेशन 1 will become d square minus 4d minus 5y equals to 0. ये अपने पास आ गई है. तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जा सकती है. हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, d को m से रिप्लेस कर देते हैं. क्यों करते हैं, यू ऑल नो, बिकॉज हम लोग लेके चलते हैं कि लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर mx इज अवर सोल्यूशन. अगर आप उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने को जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल करके आएगी वो होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के अगर आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स आर वेरी सिंपल. इट विल बी m प्लस 1 m माइनस 5 equals to 0. It means we get m equals to minus 1 comma 5. Clearly we see that roots are real and distinct. आपके जो रूट हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 e टू द पावर 5x. ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया. अब अपने को पता करना, आधा काम अपना हो चुका है. ओके, नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, वी आर गोइंग टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल में अपने पास, if we see the right hand side is containing exponential function as well as trigonometric function. okay, तो टाइप 1 भी यहाँ पर अवेलेबल है, टाइप 2 भी आपके पास अवेलेबल है. दोनों की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी. तो लिखते हैं yp विल बी 1 अपॉन डी स्क्वायर एफ डी. अगर आपको ध्यान हो, yp इज 1 अपॉन एफ डी इंटू rx, जो आपका राइट हैंड साइड है. एफ डी अपने पास क्या, दिस इज एफ डी, वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ डी. एफ डी है डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5, और राइट हैंड साइड में मेरे पास है e टू द पावर 2x प्लस 3 cos 4x प्लस 3 cos 4x प्लस 3. चलिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करते हैं. तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5 3 टाइम्स cos 4x प्लस 3. अगर आपको टाइप 1 ध्यान में है तो हम लोग करते थे, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला भी नोट कर देता हूँ, 1 अपॉन एफ डी, अगर ध्यान में नहीं है आपको, 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ए ई टू द पावर ए एक्स. कंडीशन अप्लाइड, एफ ए नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर तो हम डी के प्लेस में, और ए कितना है, ए इज 2, इस केस में ए 2 है, देयरफॉर वी पुट ए इक्वल्स टू 2 हियर. तो यहाँ पर ए को 2 रखेंगे तो क्या होगा, लेट अस चेक, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 ई टू द पावर 2x. और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये केस कौन सा है,
दिस केस इज ऑफ टाइप, अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखाने जाऊँ तो ये है 1/FD cos AX प्लस बी। आपको क्या करना पड़ता है, जहां पर आपको डी स्क्वायर दिख रहा है वहां पर आपको माइनस ए स्क्वायर लिखना है, और ए कितना है यहाँ पर, ए इज 4, ये ए का वैल्यू है। ओके, तो क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर वी पुट माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, ए इज 4, तो माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, -16, माइनस 4D माइनस 5D के प्लेस में अभी कुछ नहीं रख पाएंगे, और 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को यहाँ पर ले आए, ये हो गया cos ऑफ 4x प्लस 3। नाउ वी पुट दीज वैल्यूज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में यहाँ पर तो अपने को मिल रहा है -1/9 e टू द पावर 2x, और यहाँ पर मिल रहा है -3 सभी के सारे टर्म माइनस है, तो ये हो जाएगा 4D प्लस 21 cos ऑफ 4x प्लस 3। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, whenever we have odd powers of d, अगर आपके पास odd powers of d है तो उनको आपने even powers of d में कन्वर्ट करना पड़ेगा, d का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है even powers of d में, क्योंकि आप d स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, से दिस इज I1, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन, एक मिनट रुकिए, इक्वेशन 1 आपकी कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी आपकी ये, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बोल देते हैं इक्वेशन 2। ओके, और इसका नाम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, से इट इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। पुट I1 को हमें सॉल्व करना है, वी टेक इट सेपरेटली, पुट I1 इक्वल्स टू -3/4D प्लस 21 cos ऑफ 4x प्लस 3, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर डी स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, आप लिख सकते हैं सिंस डी स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर को प्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 4D माइनस 21 से, न्यूमरेटर में अभी डिनोमिनेटर में अभी, उससे क्या बेनिफिट होगा, लेट अस चेक। ओके, -3 4D माइनस 21 4D प्लस 21 4D माइनस 21, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आ जाएगा, cos ऑफ 4x प्लस 3, और इसको अगर हम लोग देखें सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा 12D माइनस 63, 12D माइनस है बाहर में आपके पास, उसको माइनस को रहने देते हैं, 12D माइनस 63 अपॉन दिस वन विल बिकम 16D स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर cos ऑफ 4x प्लस 3। अब आप इसको अगर केयरफुली देखते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास डी स्क्वायर अवेलेबल हो गया है, और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर अवेलेबल हो गया है, समझिए परेशानियां आपकी खत्म हो गई हैं। वी जस्ट पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है -16, न्यूमरेटर से हम लोग बाद में निपटते हैं, 12D माइनस 63 अपॉन -16 इंटू -16, ओके, -21 स्क्वायर cos 4x प्लस 3, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है -12D माइनस 63 अपॉन, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 697 cos ऑफ 4x प्लस 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में आपके पास d है, तो इस ऑपरेटर को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा इधर पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट इट -1/697 इज देयर, ओके, और ये हो जाएगा 12 टाइम्स d ऑफ cos 4x प्लस 3 माइनस 63 cos of 4x plus 3. What about d of cos 4x plus 3? d of cos 4x plus 3 is nothing but we have to differentiate
this cos 4x plus 3 with respect to x one time. What we get? Let us check. minus 1 upon 697 12 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्लियर कट पता है माइनस 4 साइन 4x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 63 साइन 4x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें हम तो 12 4 जा 48, और अगर माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 1 अपॉन 697 48 साइन 4x प्लस 3 प्लस 63 साइन 4 this is cos 4x plus 3, sorry for typing mistake, cos of 4x plus 3. Now put this value in equation number 3. पहले हम लोग इसको इक्वेशन 3 में रखते हैं क्योंकि इक्वेशन 3 का आधा पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है माइनस 1/9, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके अभी फाइंड आउट किया है। तो इन सारी वैल्यूज को उठा करके इसको अगर हम लोग कहते हैं इक्वेशन 4, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 4 कर देते हैं तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, वी गेट जनरल सॉल्यूशन। जो भी जनरल सॉल्यूशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ऑलरेडी देयर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल दिया है, और प्लस पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपके पास दो पार्ट थे, एक एक्सपोनेंशियल वाला और एक ये वाला, आपने ऑलरेडी दोनों निकाल दिए हैं। तो इनके वैल्यूज यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे, वो वी पुट दीज वैल्यूज। तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट इज y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 e टू द पावर 5x प्लस आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में कौन कौन से टर्म है, माइनस 1/9 जो फर्स्ट पार्ट था, e टू द पावर 2x प्लस 1/697 48 साइन 4x प्लस 3 प्लस 63 cos 4x plus 3. This is solution of differential equation. Now we solve one more example. Example 2. It's very simple example. ये आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ. Solve d square plus 4y equals to sin 3x plus cos of 2x. ओके, यहाँ पर इक्वेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके लिए लिखनी पड़ेगी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा टाइम्स 2। तो क्लियरली यहाँ पर अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 2। वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स रूट, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e to the power alpha x, since alpha is 0, तो a cos 2x plus b sin 2x. This is complementary function due to complex root. Now we find particular integral pi. Particular integral yp will be given by 1 upon d square plus 4 sin 3x plus cos of 2x. सेपरेट कर लेते हैं ऑपरेटर को। वी कैन राइट 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस ऑफ 2x. पुट इन दिस केस, ओके, इन दिस केस पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू a is 3, तो माइनस 3 स्क्वायर, एंड इन दिस केस पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू a is 2 माइनस 2 स्क्वायर. ओके, इफ वी सी इट केयरफुली, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर तो आपका काम बन जाता है कि डी स्क्वायर को जैसे आप माइनस 3 स्क्वायर रखते हैं तो वी गेट 1 अपॉन माइनस 9 प्लस 4 साइन 3x. यहाँ तो कोई इशू नहीं है, बट आप जैसे ही यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखते हैं वी गेट माइनस 4 हेयर, और माइनस 4 रखते ही ये जो केस है, दिस केस, इट इज ऑफ टाइप फाई ऑफ
minus a square equals to 0. If phi of minus a square equals to 0, then आपको पता है उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये जो केस 2 है, मल्टीप्लाई विद x, डिफरेंशिएट दिस टर्म, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इफ फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं आपके पास, x 1 अपॉन फाई डैश माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. We are doing the same thing, multiply by x, differentiate this term, we get 2d cos of 2x. Once again there is a problem, in denominator we have a d which is odd power, तो इस d को भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, we have to multiply by d in numerator as well as denominator. आपको हमेशा डिनोमिनेटर में d के पावर्स को इवन पावर बनाना पड़ता है, तभी आप डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर रख पाएंगे. ओके, तो ये तो हो गया माइनस 1 अपॉन 5 साइन ऑफ 3x. यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डी इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉस ऑफ 2x. अब ये तो एज इट इज चल रहा है, साइन ऑफ 3x. यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, सिंस वी हैव डी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, तो करेंगे डी स्क्वायर को पुट डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर. तो ये कहानी बनेगी आपकी एक्स डी अपॉन 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर कॉस ऑफ 2x. तो यहाँ पर हो गया माइनस 1 अपॉन 5 साइन 3x. ओके, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन 8 x इंटू डी ऑफ कॉस 2x. नाउ वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी कॉस 2x. डी कॉस 2x का मतलब है डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 2x. हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 साइन 3x माइनस 1 अपॉन 8, और कॉस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 5 साइन 3x प्लस 1 अपॉन 4 x साइन 2x. आपका yp आपके पास आ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी वेट कर रहा है ऊपर. तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन, ओके, विल बी y इक्वल्स टू y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर. y कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो, a cos 2x प्लस b sin 2x, और ये पर्टिकुलर आपके पास है माइनस 1 अपॉन 5 साइन 3x प्लस 1 अपॉन 4 x साइन 2x. दिस इज आंसर ऑफ दिस differential equation. Similarly, we can find out or we can solve other questions as well. In next class, I will do some more examples based on this type, then we move to type 3. Thanks for joining. Thank you very much.